Hello students, today we are going to start a new topic from history of modern India. The name of the topic is Anglo-Maratha War. What we are going to learn it? Let's prepare a roadmap. First we will discuss causes because of which English and Maratha fought. And then we will discuss three Anglo-Maratha wars. Anglo-Maratha wars. The years in which these wars were fought, I am mentioning 1775 to 82, 17, not 17, 1803 to 1805, and 1817 to 1819. So these are the period, these are the duration when these three wars were fought. But before starting, before going through these topics, let's recall what we did in the last lecture. In the last lecture, we were discussing Maratha state. What we had discussed in that lecture, we discussed the timeline. First, we discussed timeline. Then we discussed structure of Maratha state, and then we discussed third battle of Panipat, and further in the subtopics of this we discussed who were the major parties involved in this battle, who were the major parties. I think you are recalling this with me, parties and significance, or you can say impact of this war. And then we discussed the reason, causes first. Then we discussed causes because of which Maratha loses in this battle, and then we discussed the reasons because of which several, yeah, कह सकते हैं numerous battles were fought at Panipat. So this we discussed. Let's go in a bit in detail. Timeline. So timeline was very simple. 1670 14, 74, 1679, 1689, 1681st, then 1689. These are important years. 16, not 16, 1700, 1707, then 1713, 1720, 1740, and 61. So these are important years which you need to remember. If you want details, you can watch the previous lecture. 1774, Shivaji declared officially Maratha kingdom as independent to Mughals. 1679, Shivaji was dead. Okay, then in 1680, son of Shivaji, that is Sambhaji, became king, or you can say Maratha ruler. And then 1689, Sambhaji was killed by Mughals, and his his wife and his son was taken as hostage by Aurangzeb, so that the son can be used against the Maratha. Then 1700, sorry, in this year, Rajaram, the brother of Sambhaji, became king, or you can say Maratha king. And then 1700 he died. He means Rajaram died of lung disease. And on behalf of Rajaram, his wife
Tarabai ruled, okay, as a regent of his son Shivaji II. Then in 1707, Shahu was released from the hostage of Mughals after the death of Aurangzeb. Shahu fought with his auntie, you can say Chachi, for the succession of throne. He won the war and became king of Maratha. And then in 1713, what happened? Peshwa era started. Balaji Vishnath, 1713, made Peshwaship hereditary, and then in 1720, next Peshwa was his son, Balaji Vishnath's son, Bajirao, who was the strongest Peshwa. Then his son, that is Balaji Bajirao became next Peshwa, and then his son, after his death in 1761, after the third battle of Panipat. He fought third battle of Panipat. He lost in third battle of Panipat, and there are several opinions that he died because he could not bear this defeat. And then his son Madhav Rao was made next Peshwa, and then Narayan Rao and Raghunath Rao, and then Bajirao II. Raghunath Rao, then Savai Madhav Rao, and then Balaji II. This we discussed in this lecture. Next, we discussed about army. In a structure part, we discussed about Maratha administrative structure. Administrative structure is army and economy. It's army and economy. So what we discussed? Administrative structure, army and economy. Administrative structure, king, Peshwa, Sardars. Sardars were confederacy. Confederacy means in which states are more powerful than the center. It means the king did not have more power than the Sardars, you can say, or the states. There was a responsibility of state to rule and expand, okay, in particular territories which they have been assigned. Administrative structure clear? Army, what kind of army did Maratha have? So Maratha were having the same army as Mughal had, okay. So there was no major difference between the army of Mughal and Maratha, but Maratha were skilled in a war technique, that is guerrilla technique. And then economy, they were dependent on for their revenue on taxes like Chauth and Sardeshmukhi, and a system of collecting revenue as it was followed by Mughals. So, the name of the system of collecting revenue is Saranjami. It is similar to the Mughals revenue collection system. The name of the system was Mansabdari system, or you can say Zamindari system. They were almost similar, but there were some significant differences as well. Okay, then we discussed third battle of Panipat. In third battle of Panipat, we discussed there were three parties. There were two sects, two opposing parties. There were different groups in one party which was taking part in fighting battle. Like in one sect, if we discuss, there were three parties like Afghan, Rohilkhand, and Awadh. There were three altogether forming one party, and then there were other party which was collision of Mughals and Maratha. Okay. So why they were together, I have discussed this. You can watch the video, last lecture. Okay. Got to know what were the parties, who were the parties. Significance is Maratha were defeated. If Maratha were defeated, then it means they are going to be declined. They are going to decline, and this decline is showing that they are not going to be the pan
India ruler. Okay, and British got indirect benefits. I have explained this in the last lecture. Causes of Maratha defeat. What were the causes of Maratha defeat? Why they lost in the battle? Even they were very powerful at that time. They lost because of internal disputes, because of lack of proper financial resources, because of long route of supply, because of, you can say, internal disputes. I have explained, I have just spoken this. And weak Mughal rulers, this can be the reason. No central authority, this can be the reason. And they were not skilled fighting at a place which is grassland, or which is not hilly or forest. Okay, or you can say frosty forestist. Okay, so these were the causes because of which Maratha lost. And then, what were the reasons because of which several battles were fought at Panipat? So I discussed all the factors, all the possible factors which I could. Like, Panipat was between the path which lead to Delhi, from northwest to Delhi. If somebody wants to come to Delhi, he has to go through Panipat. It was in the path. It means when somebody is entering through Khyber Pass, then he has to pass through Panipat to reach Delhi. Therefore, Panipat was the ground where the parties coming from, invaders coming from northwest, can be defended by the rulers of Delhi at Panipat. Okay, Panipat was a better battlefield. I have explained this reason as well. And there were many people who were involved in manufacturing weapons uh, nearby Panipat or in Panipat. Therefore, it was a battlefield. And moreover, you can see Panipat, Panipat was very near to the central Mughal authority. It means Delhi. This is one of the reasons. And one last reason I explained: construction of Grand Trunk Road by Sher Shah Suri. So this led to many numerous battles fought at Panipat. Okay, so this was the quick revision. Let rub it, and then we start discussing this. Anglo-Maratha Wars. We are going to discuss about the causes because of which English and Maratha fought each other, and these three wars, Anglo-Maratha Wars. Let's start. First, causes. I am just summarizing all the things. See the reasons. First reason: English East India Company. English East India Company. They were interested. English East India Company was interested to increase its profit by obtaining fertile region. And this region of Maratha was famous for production of cotton. It was very fertile for production of cotton. So the cotton production, the cotton producing capability attracted British. Okay, so they wanted to obtain this region for production of cotton, for earning profit. So this can be the reason. Moreover, political ambitions. Political ambitions. British had political ambitions. Ambitions means desires, that they wanted to expand their political sphere, power of political sphere. Okay, it means they wanted to expand their rule over more and more territories in the world. They were trying to rule over in the world, not only a particular region. So this can be the cause because of which they fought. Moreover, internal disputes. Maratha kingdom was not a very stable kingdom. Okay, there were many internal disputes which were shown in the third battle of Panipat.
as I explained you in the last lecture, that Bhonsle and Sindhia or Holkar. Sindhia and Holkar did not take participation in the third battle of Panipat because of internal disputes. So it is one of the reasons because of which English, it means East India Company, got the knowledge that there is internal dispute because of which they lost in the battle. So it might be a reason because of which Anglo-Maratha wars took place. Okay. Next, what can be? Maratha were supporting, at some point of time, Maratha were supporting whom? They were supporting Mysore. Maratha were supporting Mysore, which British did not like. So this can be the reason because of which Anglo-Maratha wars took place. So these are some causes because of which Anglo-Maratha wars were fought. Let's move ahead and discuss these wars. Okay. First, Anglo-Maratha war. So this war reigned from 1775 to 1800, not 1800, 1770, 1782. ओके, देखिए कोई भी लड़ाई जो है वो अचानक से शुरू नहीं होती, उसकी बैकग्राउंडिंग होती है, उसके रीजंस होते हैं. when first battle or you can say war between English and Maratha was fought, there must be some reasons behind, or you can say before the war took place or war initiated. So what were the reasons, what were the factors because of which this war initiated? Let's discuss. 1772 में माधव राव, who was the son of Balaji Bajirao, okay, died. He died. Then his son, who was his son? His son was Narayan Rao. Was made the next Peshwa. But what happened? Madhav Rao's brother wanted to become Peshwa, next Peshwa. Madhav Rao's brother. Who was the Madhav Rao's brother? Raghunath Rao. तो रघुनाथ राव क्या चाहता था? वो चाहता था कि वो नेक्स्ट पेशवा बने, यानी कि उसको नारायण राव का पेशवा बनना पसंद नहीं था. तो इसने क्या करा? He killed Raghunath Rao, killed Narayan Rao and became next पेशवा. कब किल करा इसने करा 1773 में, यानी कि एक साल तक इसकी पेशवाशिप थी. इसके पास नारायण राव के पास किल कर दिया और रघुनाथ राव क्या बन गया? नेक्स्ट पेशवा बन गया. लेकिन जो अदर चीफ्स थे, मराठा चीफ्स, वो हैप्पी नहीं थे कि रघुनाथ राव जो है वो पेशवा बना रहे. वो चाहते थे कि नारायण राव का बेटा, सन ऑफ नारायण राव. कौन था सन? बालाजी राव सेकंड. कि बालाजी राव सेकंड को क्या बनाया जाए? पेशवा बनाया जाए. चीफ्स ये चाहते थे. ओके, तो फिर हुआ क्या? माधव राव को हटा दिया गया. इससे कह दिया गया कि आप चीफ नहीं रह सकते. तो लेकिन रघुनाथ राव मान ही नहीं रहा था. वो चाहता था कि वही पेशवा बने, इसलिए वो जाता है ब्रिटिश की शरण में. देखिए फिर से ब्रिटिश किसका फायदा उठाएंगे? इंटरनल डिस्प्यूट्स का फायदा उठाएंगे. इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से क्या हो रहा है? रघुनाथ राव ब्रिटिश के पास जा रहा है, ब्रिटिश से हेल्प की डिमांड कर रहा है. ब्रिटिश कह रहे हैं हम मदद करेंगे, बिल्कुल बस एक ट्रीटी कर दो हमारे साथ. ठीक है, एक छोटी सी ट्रीटी कर दो. उस ट्रीटी का नाम क्या होगा? ट्रीटी ऑफ सूरत, क्योंकि सूरत में हुई ट्रीटी, तो ट्रीटी ऑफ सूरत हो गया. ट्रीटी ऑफ सूरत के अकॉर्डिंग आपको हम मदद करेंगे आपकी. हम सोल्जर्स भेज देंगे, अपने 2000 सोल्जर्स आपको दे देंगे. आप लड़ना, उनसे जीतना. बस उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं
तो जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ सूरत के अकॉर्डिंग आपको कुछ कि अपनी जो कंकर्ड टेरिटरी हो हमें देनी पड़ेगी। आपको याद होगा पुर्तगी मतलब कि जो बाजीराव था, जो बाजीराव ने दो टेरिटरी, दो मतलब कि पुर्तगीज स्टेट को वन जीता था, मतलब ठीक है। कौन कौन से थे वो? एक था सैलसट और एक था देसी। तो ब्रिटिश ने कहा वो स्टेट हमें दे देना और कुछ टेरिटरी दे देना, और जो वॉर का खर्चा आएगा वो आप बियर करना, हम बियर नहीं करेंगे। ओके, ब्रिटिश ने कुछ शर्तें रखी और ट्रीटी ऑफ सूरत कर ली। ये ब्रिटिश एक्चुअल में बॉम्बे में थे, वो जो बॉम्बे में ब्रिटिश थे उनके साथ ये ट्रीटी हुई। लेकिन जो कलकत्ता काउंसिल थी, कलकत्ता काउंसिल में वहां वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस ट्रीटी को। उसने कहा दूसरी ट्रीटी करो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर करो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर स्पेलिंग चेक कर, पुरंदर। कब हो रही है सारी चीजें? 1775 में। फिर 17 ये ट्रीटी 1775 में हुई और ब्रिटिश के लिए रिफ्यूज में 1775 में गया है, और पुरंदर की ट्रीटी 1776 में होती है। तो पुरंदर की ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया? कलकत्ता काउंसिल ने कहा रघुनाथ राव जो है वो अपना पेशवा बनने का सपना छोड़ दे और उसको पेंशन मिल जाया करेगी, पेंशन पर वो मतलब कि रहे, ऐसा जो है कलकत्ता काउंसिल ने रिकमेंड करा। एक्सेप्ट कर लिया गया ये, ठीक है। मराठा को लगा ऐसे बने वाला है, और उसके बाद ये भी कहा गया कि मराठा जो है वो फ्रेंच को कोई भी अपना मतलब कि सेटलमेंट नहीं देंगे, वहाँ पर जगह नहीं देंगे या उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। ये ट्रीटी करी गई, लेकिन ये ट्रीटी जो है खुद ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश बॉम्बे में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ने क्या करा? रिफ्यूज दे दी रघुनाथ राव को, ताकि क्या हो सके, ताकि मतलब वो पेशवा बन सके, यानी कि उसने रिफ्यूज कर दिया। ओके, और ऐसे ही क्या हुआ? ऐसे ही फ्रेंच सॉरी ऐसे ही 1779 में, यानी कि एक तरफ से ब्रिटिश ने ट्रीटी को फॉलो नहीं करा है, दूसरा क्या बता रहा हूँ, 1779 में मराठा जो है वो फ्रेंच को एक पोर्ट दे देते हैं, एक जगह दे देते, प्लेस दे देते हैं कि आप यहाँ पर अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। देखें क्या हुआ, ट्रीटी का वायलेशन हो गया। ट्रीटी का वायलेशन हुआ तो फिर जो कलकत्ता काउंसिल थी वो क्या हो गई, उसे गुस्सा आ गया, मतलब ठीक है। ओके, तो उसके बाद शुरू होता है वॉर, यानी कि वॉर की प्रिपरेशन से लेकर, शुरुआत से लेकर रघुनाथ राव ने शुरुआत कर दी है 1775 में, मुझे मदद करो, मेरे को सोल्जर्स की जरूरत है, ठीक है। ट्रीटीज हो गई, और उसके बाद जो है मराठा क्या करते हैं, फ्रेंच की हेल्प कर देते हैं, ब्रिटिश जो है रिफ्यूज देता है रघुनाथ राव को। ओके, और जब रिफ्यूज देते हैं उसके बाद वॉर शुरू मतलब कि वॉर शुरू हो जाता है दोनों के बीच में, ब्रिटिश और मराठा के बीच में। मराठा जो है बुरी तरीके से ब्रिटिश को स्टार्टिंग में डिफीट करते हैं, हराते हैं। ब्रिटिश वर डिफीटेड। इनिशियली ब्रिटिश वर डिफीटेड, मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा। ओके, ब्रिटिश क्या हो गए, ब्रिटिश इनिशियली तो डिफीट हो जाते हैं, उनको हरा दिया जाता है, और उसके बाद वो ट्रीटी होती है फिर से, यानी कि जब ब्रिटिश हार जाते हैं तो एक न्यू ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वर्डगांव, क्योंकि यहीं पर हारे थे वो, तो यहीं पर एक ट्रीटी हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर ब्रिटिश काउंसिल से बहुत और ज्यादा सोल्जर्स को भेज दिया जाता है। ओके, और कहा जाता है मतलब कि किस लिए, ताकि मराठा को हराया जाए और एक नई ट्रीटी करी जाए। तो मराठाओं को फिर हराया जाता है, यानी कि फिर एक वॉर होता है 1881 में आई गेस। ओके, और मराठा वर डिफीटेड। अब क्या हो गया, मराठा को हरा दिया गया, मराठा वर डिफीटेड। क्योंकि मराठा हार गए, फिर एक ट्रीटी होगी, और इस बार की ट्रीटी किसके फेवर में जाएगी? इस बार की ट्रीटी जनरली हम देखेंगे तो वो ब्रिटिश के फेवर में जाएगी। आप एक चीज कनेक्ट करें, सॉरी 1881 नहीं 1781, एक चीज कनेक्ट करें, अगर हमें याद हो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था सॉरी, वो कब हुआ था? 1779 से 82 के बीच में। और अगर आप ध्यान दें उसी के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर मराठाओं को हराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप मैसूर का साथ नहीं देंगे। बात क्लियर? यानी कि मैसूर जो है
जो जिसके साथ सेकेंड वॉर में आपको याद होगा हैदराबाद और मराठा मैसूर के साथ थे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, मराठा से ट्रीटी करी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप समर्थन नहीं करेंगे मैसूर का। बात क्लियर? तो 81 में हो गया, ट्रीटी हो गई 1882 में, आई गेस 1882 में। और ट्रीटी कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। और इस ट्रीटी के साथ 20 साल तक, 20 ईयर्स तक पीस मेंटेन रहा ब्रिटिश और मराठा के बीच में। बात क्लियर? ब्रिटिश और मराठा के बीच में पीस मेंटेन रहा 20 ईयर्स तक। 20 ईयर्स तक ब्रिटिश ने इनको यूटिलाइज करा, इन 20 ईयर्स को क्या करा? यूटिलाइज करा। और मराठा ने क्या करा? इन ईयर्स को मतलब कि बेकार कर दिया, इन ईयर्स को बर्बाद कर दिया। कैसे करा देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सालाबाई के साथ मैंने क्या बताया? ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ट्रीटी ऑफ सालाबाई के साथ पीस पीस ट्रीटी थी एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि इनकंक्लूसिव वॉर था ये, कंक्लूजन तो नहीं था, नहीं कंक्लूसिव वॉर होता तो फिर वो सब्सिडरी लाइंस देते कि सब्सिडरी लाइंस एक्सेप्ट करते, है ना, ऐसा कुछ हो सकता था। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो अभी ये पीस ट्रीटी थी, पूरी तरीके से डिफीटेड मराठा भी नहीं थे और ब्रिटिश भी नहीं थे, अभी पूरी पावर इन्होंने यूज नहीं करी थी। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई के साथ पीस ट्रीटी हुई एक तरीके से, और 20 ईयर्स तक इनको रिलैक्स करने का मौका मिला। तो ब्रिटिश ने तब तक क्या करा, ये मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ आपको, इस एंग्लो मैसूर वॉर की सिग्निफिकेंस क्या है। लड़ाइयाँ हुई, इनकंक्लूसिव था वॉर, फिर उसके बाद पीस ट्रीटी हो गई। ब्रिटिश ने 20 ईयर्स यूटिलाइज करे, कैसे? इन्होंने मतलब कि मराठा को हरा दिया, सॉरी मैसूर जो है, पहली बात हैदराबाद, हैदराबाद के साथ सब्सिडरी लाइंस करेगी, हैदराबाद सब्सिडरी लाइंस में आ गई 1798। उसके बाद मैसूर के जो सुल्तान है, टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड, टीपू सुल्तान मारा गया 1799। ओके, उसके बाद अवध को भी क्या कर लिया इन्होंने, अवध के साथ भी इन्होंने सब्सिडरी अलायंस करी। कब करी? 1801 में। तो काफ़ी अचीवमेंट कर ली इन्होंने, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गए, अब इनके पास और ज़्यादा प्रेस्टीज, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, सपोर्टर्स बढ़ गए हैं। अवध अवध भी अब इनके फेवर में है, टीपू सुल्तान को मार दिया गया तो वो अब उसका खतरा खत्म हो गया है। हैदराबाद जो है वो भी अब क्या हो चुका था, उसका भी खतरा खत्म हो चुका था। अब पूरी तरीके से फोकस किस पर आएगा? मराठा पर आएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। लेकिन मराठा ने क्या करा इन 20 ईयर्स में? इंटरनल डिस्प्यूट का सामना, इनमें वॉर ही होते रहे, लड़ाइयाँ ही होती रही। होलकर, सिंधियास, भोंसले या फिर गायकवाड़ जो है ये एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसकी वजह से यूनिटी नहीं आई। पावर्स जो है वो वीक, मतलब ये वीक होते रहे, पावर लूज करते रहे अपनी। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है ब्रिटिश जो के नए गवर्नर जनरल बने वेस्ले, ठीक है, क्या नाम था? वेस्ले, लॉर्ड वेस्ले। उन्होंने फिर सोचा चलो फिर से एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा, मैसूर भी आ गया हमारे कब्जे में, अवध भी आ गया और हैदराबाद भी आ गया, सब कब्जे में आ गए। अब और एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी इनकी, तो ये एक्सपेंड करते हैं। ओके, 1798 से 05 यहाँ तक ही गवर्नर जनरल रहे, इन ईयर्स तक। न्यू एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी डिसाइड क्या करा गया? अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की तैयारी हुई है, एंग्लो मराठा वॉर की। अगर मैं कभी मैसूर बोल रहा हूँ इसमें बार बार तो उसका मतलब मराठा है, ठीक है। देखिए तो हुआ क्या, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई ये देखते हैं। ग्राउंड लगभग सेम था, जैसे माधव राव, सॉरी रघुनाथ राव रूलर बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था, तो वो कहाँ गया? ब्रिटिश के पास गया, क्योंकि बाकी जो चीफ्स थे, मेन चीफ्स थे मराठा के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जो
रघुनाथ राव है वो नेक्स्ट पेशवा बने, इसलिए वो कहाँ के ब्रिटिश के पास हेल्प ले गया। लेकिन बाद में साराभाई की ट्रीटी हो गई थी तो उसको पेंशन के दे दी, मतलब पेंशन की मंजूरी दे दी गई थी कि उसको पेंशन मिलेगा और एक पर्टिकुलर एज में रहेगा, 3 लाख रुपए का पेंशन उसको पर ईयर मिलेगा, ऐसा कहा था। यानी कि वो पेशवा नहीं रहेगा, ये ट्रीटी में क्लियर हो गया था। कौन पेशवा रहने वाला है? सवाई बाजीराव। सवाई बाजीराव कौन है? या सवाई बाजीराव कहते हैं इसे, सॉरी सवाई माधवराव, क्या कहते हैं? सवाई माधवराव। सवाई माधवराव क्यों कहते हैं? क्योंकि जब 1773 में नारायण राव मारा जाता है तो इसका जो बेटा था वो 1.25 साल का था, 1.25 ईयर्स का था, तो इसे सवाई बाजीराव कहते हैं। ओके, सॉरी सवाई माधवराव, ये सवाई नारायण राव कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं सवाई माधवराव जो था वो क्या बन गया? वो बन गया नेक्स्ट पेशवा। लेकिन होता क्या है, ये सुसाइड कर लेता है, ऐसा कहा जाता है सुसाइड कर लेता है। 1795 में इसने सुसाइड करा। अब इसका सन जो है बाजीराव सेकंड, ये नेक्स्ट पेशवा बनता है 1795 में। लेकिन ये इतना ज़्यादा लायक नहीं था, ठीक है, एलिजिबल नहीं था, इतना वर्थलेस था। तो मैंने बताया आपको वीक रूलर आ रहे हैं, ये खुद सुसाइड कर ले रहे हैं, तो सुसाइड कर रहे हैं यानी ये भी वीक है, बाजीराव भी वर्थलेस है, ठीक है। और 1795 में ये बन जाता है पेशवा। उसके बाद क्या होता है, इसको होलकर जो है इस पर अटैक कर देते हैं और 1802 में क्या कर देते हैं, 1802 में बाजीराव को, इसका ईयर चेंज कर देते हैं, 1803 टू 1805। 1802 में क्या होता है, 1802 में होलकर अटैक्ड बाजीराव और उसको बाजीराव सेकंड और उसको हराकर पेशवा से ऑब्टेन कर लेते हैं। बात क्लियर? यानी कि अगला कोई दूसरा पेशवा बना दिया जाता है, उसका नाम मुझे याद नहीं, तो नेक्स्ट क्या है, उसको पेशवा बना दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? अब फिर क्या होगा, अब ये तो लेकिन चाहता है कि मैं ही पेशवा रहूं, अभी जाएगा फिर ब्रिटिश के पास और फिर एक ट्रीटी होगी। किसकी ट्रीटी होगी? ट्रीटी ऑफ बेसिन। बेसिन की ट्रीटी होगी और उस ट्रीटी में जो शर्तें रखी होंगी उसको इसे माननी पड़ेगी, एरिया देना पड़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश इसकी मदद करेंगे। 1803 में ब्रिटिश अटैक कर देते हैं मराठा के ऊपर, ठीक है, और फिर मराठा मतलब कि होलकर वगैरह के ऊपर डिफीट कर देते हैं और जो बाजीराव सेकंड है उसको फिर से पेशवा बना दिया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश अटैक एंड ये ईयर क्लियर नहीं है मुझे, ये 3 होगा या 5 होगा, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश अटैक करते हैं और बाजीराव को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वही बाजीराव सेकंड जो है वही पेशवा रहेगा, ओके। लेकिन अब जो है ना ब्रिटिश का रूल काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लॉइटेटिव हो गया था, उनको पावर नहीं मिल रही थी पेशवा वगैरह के पास, ह्यूमिलिएशन हो रहा था उनका। एक बात और, ये वॉर जो है रुक जाता है 1805 में, क्योंकि जो वेस्ले है उसको वापस बुला लिया जाता है। वेस्ले को क्या बुलाया जाता है? वापस बुलाया जाता है, रिकॉल कर दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। ब्रिटिश क्या करते हैं इसको, इसका नाम वेल्से है, वेल्से और वेल्से। वेल्से जो है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको वापस बुला लेती है ब्रिटिश, वहां पर उसे उन्हें जरूरत होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेस्ट मिल जाता है 1805 में, वरना और भी एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। एक्चुअल में ट्रीटी ऑफ बेसिन जो हुई है, ट्रीटी एक तरीके की सब्सिडरी अलायंस है और सब्सिडरी अलायंस में आप जानते हैं मिलिट्री मेंटेन वगैरह नहीं कर सकते, ओके। और बाकी मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा। और ब्रिटिश सोलिडारिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इंटरनल मतलब कि दूसरे जो फॉरेन कंट्री या अदर कंट्री के जो ट्रांजेक्शन हैं, डीलिंग हैं, नेगोशिएशंस हैं, वो ब्रिटिश के बिना नहीं हो सकती है। ब्रिटिश का एक रेजिडेंट इनके कोर्ट में रहेगा जहाँ पे भी जिसको भी मैं मतलब ब्रिटिश जो है अपना सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने बता दी टाइप की सब्सिडरी अलायंस। अब क्या है, जब वेल्से को वापस बुला लिया गया
वेल्से को जब वापस बुला लिया गया तो फिर जो मराठा हैं उनको टाइम मिल गया कि वो अपनी पावर को रीगेन कर सकें, क्योंकि हार चुके थे वो, फिर से लड़ाई हुई यहाँ पर, फिर से हार चुके थे, सही थे, कमजोर हो चुके थे, वीक हो चुके थे। तो फिर से उन्हें पावर गेन करने का मौका मिला। इस टाइम पर बाजीराव सेकंड जो है वो मराठा, जो डिफरेंट मराठा हाउसेज हैं उनको यूनाइट करते हैं और सब मिलकर एक साथ फाइट करते हैं, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। और फिर क्या होता है देखते हैं। मुझे थोड़ी नाम प्रॉब्लम होती है याद रखने में, आपने देखा भी होगा कितनी गड़बड़ होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वाई पानीपत। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। एटीन हंड्रेड 17 टू 19। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल है जो, ये 1813 से लेकर 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहता है। उस टाइम पर इसकी भी एक्सपेंसिव पॉलिसी होती है और उसके बीच में एक एंग्लो मराठा वॉर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक वॉर होता है। अब क्योंकि बाजीराव जो है वही दोबारा से वॉर इनिशिएट कर दे रहा है, तो फिर क्या करते हैं, ब्रिटिश जो है पेशवाशिप को ही खत्म कर देते हैं। ब्रिटिश पेशवाशिप को खत्म कर देते हैं। पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था पेशवा रहेगा वो, बालाजी सॉरी बाजीराव सेकंड। पेशवाशिप क्या हो जाती है इस वॉर में? अबॉलिश हो जाती है। हारे तो है ही है वो, मराठा जो है हारे तो है ही है, हारने के साथ साथ अब जो है पेशवाशिप अबॉलिश हो जाती है और बाजीराव को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कि अब उसको पेंशन पे रखा जाएगा। और प्रताप शिवाजी जो डायनेस्टी है, शिवाजी छत्रपति शिवाजी, उन्हीं की डायनेस्टी से प्रताप सिंह है, उसको किंग बना दिया जाता है मराठा का, प्रताप सिंह। ओके 1819 में। तो ये हो गया हमारा थर्ड बैटल, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ओके सो इस तरीके से हमने क्या समझा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कॉजेस समझे हमने, क्यों इनकी वॉर हुई, कॉटन प्रोडक्शन के लिए गुड एरिया, ये बताया मैंने। मराठा जो हैं उनकी में इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था, ये एक रीज़न था। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसकी वजह से मराठा वीक हो गए थे, एक मैंने ये रीज़न बताया था आपको। तो ऐसे करके कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एंग्लो मराठा वॉर की प्रिपरेशन हुई है, यानी कि बैकग्राउंडिंग हो रही है। उसके अलावा मैंने क्या बताया, फर्स्ट किसकी वजह से हुआ, वही सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से ही हुआ। माधवराव जाता है ब्रिटिश के पास, हेल्प मांगता है, ब्रिटिश हेल्प देते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटीज होती हैं, ठीक है। फिर फ्रेंच को रिफ्यूज़ दे देते हैं, मतलब फ्रेंच को जो है ट्रेडिंग हॉटस्पॉट दे देते हैं एक मराठा। और उसके बाद क्या होते हैं, ट्रीटी का वायलेशन होता है, ब्रिटिश रघुनाथ राव को रिफ्यूज़ दे देते हैं बम्बे पे जो ब्रिटिश होते हैं, ठीक है, बम्बे में, यानी कि जो कलकत्ता काउंसिल है उसकी बात नहीं मानते, उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रीटी के वायलेशन की वजह से, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के वायलेशन की वजह से क्या होता है, ट्रीटी, एक नई ट्रीटी, मतलब कि वॉर अगेंस्ट मराठा वॉर करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश बहुत सारे मारे जाते हैं वहाँ पर। ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है, कलकत्ता काउंसिल में जो वहाँ के गवर्नर जनरल है उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो एक लार्ज आर्मी, ब्रिटिश आर्मी भेजते हैं, फिर मराठा को डिफीट कर देते हैं, फिर ट्रीटी ऑफ सालाबाई हो जाती है। ये मैंने बताया फर्स्ट में। सेकंड में क्या बताया मैंने, सेकंड जो है ये सेम ग्राउंड पर होता है, सेम ग्राउंड नहीं, जैसे फर्स्ट वाला स्टार्ट हुआ वो वैसे सेकंड वाला होता है। इस टाइम पर बालाजी बाजीराव को हटा दिया पेशवाशिप से, फिर बालाजी बाजीराव जाएगा ब्रिटिश के पास और फिर ब्रिटिश उसको फिर से मिलिट्री सपोर्ट देंगे, कहेंगे ट्रीटी कर लो हमारे साथ। और ट्रीटी क्या होगी, ट्रीटी ऑफ बेसी, और वो एक टाइप की सब्सिडरी अलायंस है, ये बताया मैंने। और फिर होती है हमारा मतलब कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो बाजीराव सेकंड है, वो क्या करता है, वो सारे मराठाओं को यूनाइट करता है और वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्ट कर देता है ड्यू टू
एक्सट्रीम ह्यूमिलेशन बाय ब्रिटिश, और इसी वजह से वो सारे हारे जाते हैं। होलकर जितने भी हाउसेस एक साथ यूनाइट हुए होते हैं वो सब हार जाते हैं। वो ब्रिटिश की जो पावरफुल मिलिट्री है उसके आगे नहीं टिक पाते, और इस वजह से पेशवाशिप खत्म भी कर दी जाती, क्योंकि पेशवा ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई, और फिर प्रताप सिंह को, जो कि शिवाजी डायनेस्टी का एक मतलब कि एक सक्सेसर था, उसको क्या बनाया जाता है, उसको किंग बना दिया जाता है, मराठा का प्रिंसली स्टेट का किंग बना दिया जाता है। बात क्लियर। और जो मतलब कि 1947 तक इसी तरीके से प्रिंसली स्टेट का स्टेटस मराठा के पास रहता है। बात क्लियर। ओके, एक टॉपिक और भी हो सकता है एंग्लो मराठा वॉर से। क्या टॉपिक हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, मराठा क्यों हारे, व्हाट वर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच मराठा कुड बी डिफीटेड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश द्वारा मराठाओं को किस वजह से, किन कारणों से हराया जा सका, ब्रिटिश के पास ऐसी क्या खासियत थी और मराठा के पास ऐसी क्या कमियां थी। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो एक बात ऐड कर रहा हूं मैं, एक टॉपिक ऐड कर रहा हूं। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है कॉजेस ऑफ मराठा डिफीट। तो ये कॉजेस जो है हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी पढ़े थे, कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा क्यों हारे। तो कुछ रीजन तो सेम है, मराठा इसलिए ही हारे होंगे, जो जिस वजह से वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारे, उसी वजह से वो यहाँ पर हारे होंगे। यहाँ पर कुछ रीजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक सबसे पहला रीजन तो मैं बताता हूँ आपको, वीक पेशवा। जब पेशवा ही स्ट्रांग नहीं होगा, यानी कि लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, तो फिर कोई भी नहीं जीत सकता, ठीक है। कोई भी अगर लीडर ही उनका वीक है तो, या इनएप्ट है, तो फिर क्या हो सकता है, कोई उस लीडर की वजह से वॉर नहीं जीत सकता। ऐसे यहाँ पर हुआ माधवराव के बाद, माधवराव से पहले मतलब माधवराव के बाद जो भी है, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव या बाजीराव सेकंड, ये सभी कहते हैं वीक पेशवा थे, इनकी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी, ये वर्थलेस थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मराठा हारे। इसके अलावा अनस्टेबल स्टेट, मराठा कभी भी स्टेबल स्टेट में आ ही नहीं रहे। इंटरनल डिस्प्यूट इतने सारे हैं, सिंधिया होलकर गेकवाड़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, पेशवा के खिलाफ होलकर लड़ रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स रह रहे हैं, यानी कि अनस्टेबल स्टेट है, जिसकी वजह से मराठा हारे हम कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं डीजनरेटिंग कैरेक्टर, लॉयलिटी नहीं आई मराठा, मतलब कि जो चीफ्स हैं, मराठा चीफ्स हैं, उनके बीच में लॉयलिटी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, डीजनरेशन हो रहा है उनका, उनके कैरेक्टर का, इस वजह से मराठा हारे, ये भी बता सकते हैं हम। ओके, पुअर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार नहीं करा। इनके पास आर्टिलरी तो थी, लेकिन उसका एडवांसमेंट इतना ज्यादा नहीं था, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे। इस वजह से कह सकते हैं हम मराठा हारे। और क्या रीजन बताया जा सकता है, देखते हैं। ब्रिटिश जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश जो है वो मतलब कि न्यू आइडियोलॉजी से, या फिर कहें आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट एंड रेनेसेंस, इन आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वो इन्वेंशंस पर, साइंटिफिक रिसर्च पर ध्यान देते थे, इन्वेंशंस पर ध्यान देते थे, और उनकी जो ऑर्थोडॉक्सी ऑफ चर्च थी वो विच वॉज कमिंग टू एन एंड पर आ रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं ब्रिटिश जीते। बात क्लियर। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस ऑफ ब्रिटिश का इकोनॉमिक बेस बहुत ज्यादा मजबूत था, इसकी वजह से ब्रिटिश जीते। बात क्लियर। और मराठा हार गए। तो दीज कैन बी पॉसिबल सम ऑफ द रीजंस, और यू कैन से सम ऑफ द कॉजेस बिकॉज ऑफ व्हिच मराठा हैज टू फेस
had to face defeat. Okay, so this is what you need to understand. There can be other causes as well, but I have mentioned some of them as much as I am able to remember. You can go through the books and find more. Thank you.